جب بھی کوئی مسئلہ اختلافی ہو جائے اللہ رسول کی طرف لے جانا، اماموں کی طرف نہیں، بزرگوں کی طرف نہیں، خاندان کی طرف نہیں، اللہ اور اس کے رسول، اور رسول کو جج ماننا پڑے گا. اور جج ماننا تو دور کی بات، جج کا فیصلہ صادر ہو جائے بغیر چو چرا اف اینڈ بٹ، یہ کہنا کہ خاندان سے امام صاحب سے اگر یہ بات بھی کہتے تو مومن، بولو بھائی نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. مومن ہونا ہوگا تو شرط ہے سمعنا، سننا، واطعنا، اطاعت فرما برداری کرنا. یہودی کیا کرتے؟ سمعنا وعصینا، منہ موڑ لیتے. ہمیں ویسا نہیں ہونا ہے کہ مسجد کے باہر جھاڑ جھوڑ کے ادھر سے ادھر ہی نکال دو خلاص. نہ، مومن اسے کہا جاتا ہے. اپنے ڈی ایم صاحب کو نہیں بتائے گا تب تک انہیں خبر نہیں ہوگی کون میرے چوکھٹ پہ میرے دروازے پر آیا ہے. مجھے بتایا جائے انصاف کے ساتھ، کیا میرا رب کریم بھی اتنا محتاج ہے؟ میرا رب بھی اتنا محتاج ہے؟ کون ہم سے مانگ رہا جسے پتہ تک نہیں کب اٹھائے جائیں گے؟ اس سے ہم وسیلہ لگاتے ہیں اور مثالیں بیان کرتے ہیں، ان سے ذریعے سے اللہ تک بات پہنچے گی. وہ لوگوں ما قدر اللہ کا قدری، اللہ کی قدر ہم لوگوں نے نہیں. اسے کہا جاتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے ہمدرد ہو، اپنے بھائی کے لیے دل بڑا رکھتا ہو. ہم کتنے مسلمان ہیں قرآن حدیث کو ماننے والے، ڈھنڈورا پیٹنے والے ہیں، لیکن مجھے بتائیے انصاف کے ساتھ، اکثر مسلمانوں کے گھروں میں سگے بھائی ایک ایک بالشت زمین قبضہ کر کے پشت در پشت لڑ رہے ہیں، پشت در پشت لڑ رہے ہیں، سلام کلام بند کیے ہیں. آج ہمارے درمیان میں ایسے ایسے علماء سو پیدا ہو گئے ہیں. ایک تو امت پہلے سے اختلاف میں مبتلا ہے، اوپر سے اور اختلاف میں مبتلا کرنے کے لیے ان سے سلام مت کرو، ان سے کلام مت کرو، یہ لا مذہب لوگ ہیں، یہ بد مذہب لوگ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. تمام تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے اس کائنات کی، اس سرشٹی کی تخلیق کی اور ہماری رہبری و رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر قوم کے اندر انسانوں میں سے ہی انبیاء رسول کو بھیجا. تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں جس موضوع لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع بہت ہی اہم ہے، اور اگر اس کے اوپر گفتگو کی جائے تو کافی وقت درکار ہے. موضوع ہے مومن کسے کہتے ہیں، ایمان والے کون ہیں، ایمان والوں کی صفت کیا ہے، مومن کی پہچان کیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس کے اندر کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں. جو یہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی قرآن مجید سے، اسی آیت کے اندر پوری تقریر ہوگی انشاءاللہ. پہلی نشانی مومن کسے کہتے ہیں کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. مومن کسے کہتے ہیں؟ جب میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں تو بہت کم ہی صحیح طریقے سے کوئی جواب دے پاتا ہے، ورنہ اکثر لوگ دنیاوی اعتبار سے جواب دیتے ہیں کہ مولانا کیا بات کر رہے بھائی، ہم مومن نہیں ہیں کیا؟ میرا نام عبداللہ ہے، ہم سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، کبھی ہمارے گھر پہ آئیے دیکھیے بلڈنگ پہ لکھا ہوگا ھذا من فضل ربی، تو یہ میری نشانی نہیں ہے کیا؟ یہ کافی نہیں ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ کافی نہیں ہے. ہمیں ایمان لانا پڑے گا ویسا جیسا اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر ہدایت چاہتے ہو نجات، چاہتے ہو کامیابی، چاہتے ہو سرخرو ہونا، دنیا کے اندر بھی عزت پانا، آخرت میں بھی کامیابی و کامران ہونا، تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ، اللہ کے رسول صلی اللہ، بولو بھائی صلی اللہ
अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के तरीके से ईमान लाओ, जैसे सहाबा ईमान लाए थे। अब सहाबा कैसे ईमान लाए थे, एक तवील हदीस का टुकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अशरा मुबशरा में से एक सहाबी रसूल हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए तो उनके गांव वाले, उनके कुंबा, कबीला, खानदान सब खिलाफ हो गया, यहां तक कि उनका जीना दूभर हो गया। जब वो हिजरत का सोचे तो अपने बीवी बच्चों को लिया, अपना माल लिया, जो खुद की कमाई हुई सवारी थी उसको लिया और हिजरत के सफर तय करने के लिए खड़े हुए तो गांव वाले आके घेर लिए। खानदान आ गया, कहां जा रहे हो अब्दुर्रहमान? कहा अल्लाह के रसूल के पास जा रहे। कह रहे जा रहे हो तो जाओ, मेरे घर की बहू नहीं ले जा सकते हो। अल्लाह अकबर। ये सहाबाए कराम की कुर्बानी देखिए। कहा ठीक है रख लीजिए। सोचा बच्चे के सहारे जिंदगी गुजार लेंगे। लोगों, मस्जिद के अंदर जितने भी बैठे हैं, सुनने वाले सुनने वालियां, माँ और बहनों, सब कान खोल कर सुनो। ये कोई वाकया किस्सा कहानी नहीं कि बस बयान हो गया खलास खत्म, अपनी जिंदगी में लाओ। ये सहाबाए कराम की कुर्बानी देखो। बीवी को दे दिया, ठीक है रख लो आप, बच्चे के सहारे जिंदगी गुजार लें। ना 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 ना, खानदान का चिराग है मेरा, इसे नहीं ले जा सकते हो। क्या गुजर रही होगी इस बाप के ऊपर, सोचो जरा क्या गुजर रही होगी। बच्चा भी दे दिया, माल रखा था कि रास्ते में काम आएगा वो भी छीन लिया, ऊँट लिया कि चलो सफर में काम आएगा वो भी छीन लिया, पैदल सफर कर दिया अल्लाह के रसूल के पास। ये जज्बा नहीं छीन सके वो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल सब कुछ लुटा कर आया। कहा क्या बात है? कहा अल्लाह के रसूल सब कुछ लुटा दिया, मुझसे हमारी बीवी छीन ली गई, बच्चे छीन लिए गए, माल छीन लिया गया, सवारी तक छीन लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं मेरे सहाबा गम ना खाओ, ईमान की दौलत बचा कर आए हो, सबसे बड़ी दौलत लेकर आए हो। सुभान अल्लाह। अब ये आए हैं तो जाहिर सी बात इनके पास कुछ नहीं, सब कुछ छीन लिया गया, खलास है, कंगाल हैं। ये मुहाजिर सहाबी हैं, बगल में खड़े साद बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब ये आयत करीमा का टुकड़ा जो मैंने बयान किया, वल मुमिनून वल मुमिनातु बादुहुम औलिया बाद, कि मोमिन मर्द और मोमिना औरतें एक दूसरे के हमदर्द होते। कैसे होते देखो, साद बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जो मालदार साहबी हैं, दो बीवियां इनके पास, कहते हैं मेरे भाई आपके पास कुछ नहीं है, ये थोड़ा माल ले लो या जितना आप चाहो उतना माल ले लो, और जो बीवी को आप पसंद करो उसे तलाक दे दो, इद्दत के बाद अपने निकाह में रख लो। तो साहबी रसूल अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला कहते बारकल्लाहु फीही अहलिही व मालिक, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके माल और अहल खाना पे बरकत अता फरमाए। वो नहीं लिए। ये बताने का मकसद ये है कि देखो अपने भाई की मदद के लिए आधा माल पेश कर दिए, माल तो दूर की बात बीवी तक पेश कर दिए। ये होता है वल मुमिनून वल मुमिनातु बादुहुम औलिया बाद। मोमिन इसे कहा जाता है जो अपने भाई के लिए हमदर्द हो, अपने भाई के लिए दिल बड़ा रखता हो। हम कितने मुसलमान हैं, कुरान हदीस को मानने वाले, ढिंढोरा पीटने वाले हैं, लेकिन मुझे बताइए इंसाफ के साथ, अक्सर मुसलमानों के घरों में सगे भाई एक एक बालिश्त जमीन कब्जा करके पुश्त दर पुश्त लड़ रहे हैं, पुश्त दर पुश्त लड़ रहे हैं, सलाम कलाम बंद किए हैं। आज हमारे दरमियान में ऐसे ऐसे उलमाए सू पैदा हो गए हैं। एक तो उम्मत पहले से इख्तलाफ में मुब्तिला है, ऊपर से और इख्तलाफ में मुब्तिला करने के लिए इनसे सलाम मत करो, इनसे कलाम मत करो, ये ला मजहब लोग हैं, ये बदमजहब लोग हैं। अस्तगफिरुल्लाह अऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर गौर करते हैं और फैसला आप पर छोड़ते हैं कि अल्लाह के रसूल की बात मानना है कि अपने इमामों की बात मानना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम के बारे में क्या कहा और हमारे आलिम क्या कहते हैं, इनसे सलाम मत करो। ये देखिए, आप खुद फैसला कीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, तुम जन्नत में दाखिला नहीं पा सकते हो यहां तक कि ईमान वाले ना हो जाओ। वाला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, और ईमान लाना यानी सोचो हम ईमान वाले हो गए हैं तो काफी है, नहीं, हत्ता तहाब्बू की कैद बता रही है कि यहां तक कि तुम आपस में मोहब्बत ना करने लगो। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतमुहु तहाब्बतुम, अल्लाह के रसूल कहते हैं मेरे सहाबा मैं तुम्हें वो बात ना बतलाऊं जिससे तुम आपस में मोहब्बत करने लगोगे। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताइए वो कौन सी ऐसी बात है जिससे हम आपस में मोहब्बत करने लगे। आज हमारे अंदर फिक्र है, मौलवी साहब वो कौन सा ऐसा अमल बताइए जिससे हमारे जमात में इत्तेहाद हो जाए, हमारे जमात में लोग एक हो जाए। इंतशार के शिकार है, हमारा खानदान बिखर गया है, वो कौन सा ऐसा अमल है जो हम करने लगे और हम सब एक हो जाए।
ये पूछते हैं, सहाबा कराम पूछ रहे हैं अल्लाह के रसूल कौन सा अमल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अफ्सुस सलाम बैनकुम, सलाम को आम करो, सलाम को फैलाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाह पर सलामती नाजिल करे, रहमत नाजिल करे, बरकतें नाजिल करे। जवाब में वो भाई भी यही जवाब देता है, बेहतरीन सलाम, बेहतरीन जवाब। ये दुआया कलिमात जो हम एक दूसरे को देते हैं तो इससे मोहब्बत पैदा होती है, सफबंदी में मोहब्बत होती है। इमाम साहब कई मर्तबा बोलते कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाओ, लेकिन अफसोस की बात है हम छोटी उंगली मिलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। छोटी उंगली मिलाकर बहुत सारे मिलाते भी नहीं है, जैसे मन में आ रहा वैसे नमाज पढ़ रहे। ये सफबंदी से भी मोहब्बत पैदा होती है, लेकिन जब हम उंगली छोटी वाली मिलाएंगे तो कहां से मोहब्बत पैदा हो गया? बहुत सारे ऐसे लोग भी हमने देखा, ये हमारे बगल में कैसे खड़ा हो गया, जगह बदल के दूसरे जगह पे खड़े हो गए। ये हालत हो गई हमारे जमात और जमीयत के अंदर, उम्मत मुस्लिमा के अंदर। तो पहली सिफ्त मोमिनी से कहा जाता है जो हमदर्द हो अपने भाई के लिए। मोमिना औरतें उन्हें कहा जाता है जो हमदर्द हो अपनी बहन के लिए। आज कितनी बहनें ऐसी हैं जो एक दूसरे के तासुब में, हसद में मरी जा रही हैं। आप देखिए घर के अंदर देवरानी जेठानी से नहीं बन रही है, नंद भावत से नहीं बन रही है, सास बहू से नहीं बन रही है। ये हालत हो गया घर के अंदर। और क्यों ना हो, जब हम कुरान हदीस को छोड़े रहेंगे, कुरान हदीस घरों के अंदर नाफिज नहीं करेंगे तो यही होगा ना। हमने दीनदारी तो देखा नहीं था अपनी शादी के अंदर, दीनदारी देखना था, लेकिन हमने सैयद देखा, हाशमी देखा, खान देखा, पठान देखा, बिरादरी देखा। नहीं, बिरादरी में करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। किसने आपसे कहा था बिरादरी में करने से? आप दीनदारी को नहीं देखा, आप खूबसूरती देखे, बिरादरी देखे। जब ऐसी बहू लाओगे घरों के अंदर तो आपकी इज्जत करेगी, ये उम्मीद रखते हो? और जो शोहर हैं क्या सोचते हो आपकी बीवी वफादार होगी? इल्ला माशाअल्लाह। इसलिए जरूरत इस बात की दीन अपने घरों में लाओ, और जब आप निकाह करो तो दीनदार खातून से करो। एक हदीस याद आ रही है, तुनकाहु अमरतुल अर्बा, कि औरत से 4 चीजों के बिना पर निकाह होता है। लिमालिहा, उसके माल की वजह से, वली हसबिहा, उसके हसब व नसब की वजह से, वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती की वजह से, वली दीनिहा, उसकी दीनदारी की वजह से। फज़फर बिदाती दीनी तरीबत दाग, तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दीनदार खातून को फौकियत दो। दीनदार खातून लाओगे तो घरों के अंदर माहौल अच्छा होगा, तासुब के शिकार नहीं होंगे, बच्चों की परवरिश अच्छी होगी। तो मोमिन मर्द और मोमिना औरतें एक दूसरे के हमदर्द तभी बन सकते हैं जब दीनी माहौल अपने अंदर लाएं, दीनी जज्बा अपने अंदर पैदा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो पढ़ते हैं, कितने यहां बैठे हैं इल्ला माशाअल्लाह, नबी को तो मानते हैं, सहाबा को मानते हैं, लेकिन नबी की नहीं मानते, सहाबा की नहीं मानते। हमारे इमाम साहब ने जो कहा, हमारे बड़ों ने जो कहा, बाप दादा से ऐसे चला रहा है। अल्लाह अकबर। मोमिन इसे नहीं कहते भाई, मोमिन कहते हैं आपस में हमदर्द होना। मोमिन की दूसरी सिफ्त यामुरून बिल मारूफ, मारूफ का काम करते रहना। मारूफ की बड़ी फहरिस्त है, बड़ी लंबी फहरिस्त है। अव्वल नंबर पे जो उलमा इकराम ने रखा है वो तौहीद है। मुझे बताओ करनूल के वासियों, जितने यहां बैठे हुए हो, बिजनेसमैन भी होंगे, जॉब भी करते होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में बिजनेस का लेन देन चल रहा होगा। मुझे बताइए इंसाफ के साथ, कितने लोगों ने उनको इस्लाम की दावत दिया? इल्ला माशाअल्लाह। नहीं साहब, अगर हम दावत देंगे कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं हमारे बिजनेस में कमी ना आ जाए, बिजनेस खस्ता हाल ना हो जाए, डाउन ना हो जाए, इस डर की वजह से। ये तो चलो गैर हैं, अपनों का हाल देखते हैं। घरों के अंदर बाप दादा के रविश पे चले आ रहे हैं, बाप दादा से जो चला आ रहा है, भले बाप दादा गलत किए हो, जहालत में वो अमल कर गए, हम भी वही अमल कर रहे। अब बाप दादा को देख रहे शिर्क बिदअत करते हैं, उनको तौहीद की दावत देना है? नहीं, अगर हम दे दिए, अब्बा कहीं घर से निकाल ना दे, बेदखल ना कर दे। वो लोगों, मेरा फील्ड खास तौर से नौजवानों में है। नौजवानों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत याद है? अभी दिलहिज्जा गुजरा था, ईद उल अज़हा में कुर्बानी किए थे, अल्लाह के राह में जानवर ज़िबह किए थे। किसकी सुन्नत? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा किया ना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सीरत को तो याद है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप आजर को तौहीद की दावत दिए, घर से निकाल दिए, निकल गए। हम और आप नहीं देंगे, क्यों? अब्बा बेदखल ना कर दे। अकीदा कमजोर है। मोमिन उसे कहा जाता है जो तौहीद की दावत दे और दीन की सारी बुनियाद। आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर ले, इत्तिहाद 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 कॉन्फ्रेंस, इत्तिहाद मिल्लत, बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम रख ले। जन्नती जमात ना रख ले आप, इत्तिहाद मिल्लत तो दूर की बात, जन्नती जमात रख लीजिए। हाँ,
बड़े बड़े जमात आ गए, इख्वानुल मुस्लिमीन, जमात इस्लामी, तबलीगी जमात, देवबंदी भाई, तबलीगी निसाब, इधर कादरी, इधर चिश्ती, इधर शहरबंदी, इधर नक्शबंदी, इधर कोई बंदी, कोई कहां बंद पड़ा हुआ। ये सारे के सारे जितने फिरके निकले हुए। इसलिए ये चाहे जितना आप लोग जन्नती जमात वगैरह लगा लीजिए, रब्बे काबा की कसम, तौहीद की दावत नहीं है तो इत्तेहाद नहीं हो सकता। तौहीद अगर नहीं है, इस धरती पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत चलेगी, किसी गैर की इबादत नहीं चलेगी। जब तक ये नहीं है तो इत्तेहाद नहीं हो सकता है। मोमिन इसे कहा जाता है, वह हरकत में होता है, अल्लाह बरकत नाजिल करता है। मोमिन खामोश नहीं बैठता है। एक मुशरिक के गढ़ में एक तौहीद परस्त हिला कर रखता है, वो एक नौजवान हिला कर रखता है। जी जनाब, वो खामोश नहीं, बस खाओ कमाओ सो जाओ। अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया क्या? जानवर भी ऐसे ही करते, इधर मुंह मार लिए उधर मुंह मार लिए, गाड़ी के नीचे सो गए, फिर उठे सूसू कर दिए, किसी टायर पे फिर चल दिए, वैसे ही जिंदगी गुजारना है क्या? बस खाओ कमाओ सो जाओ? नहीं, अल्लाह ने पैदा किस लिए किया? मकसद पर आओ। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ। लिन्नास, अन्नास जमा का सेगा है, हिंदी में बहुवचन कहते हैं, जमा का सेगा है। तमाम लोगों को अल्लाह ने इसमें से पैदा किया, कुछ ऐसे लोगों को क्या जो दो बेहतरीन जमात जिनको खिताब दिया गया। कौन सी जमात? बेहतरीन जमात। जी, बेहतरीन जमात वो है जो तामुरून बिल मारूफ, मारूफ के काम को अंजाम दे, यानी तौहीद की दावत दे पहले। हाँ, आप एक हो जाइए, फातिहा खल्फुल इमाम पे बात मत करिए, 8 रकात 11 पे बात, आप एक हो जाइए, इत्तेहाद कर लीजिए, आइए हम सब मिल जाएं। अमा तभी मिल सकते हैं जब तौहीद पर आ जाओगे। जिस दिन तौहीद पर आ जाओगे तभी मिल सकते हैं। डिप्लोमेटिक बयानबाजी बंद करो, इनको उनको खुश करने की बात मत करो, अल्लाह को खुश करो। मोहल्ला नाराज हो रहा, हो जाने दो, अल्लाह को राजी करो इंशाअल्लाह। मोमिन की दूसरी सिफ्त है मारूफ का काम करता रहता है, मारूफ की दावत देता रहता है। तौहीद की जब आप दावत दोगे, वतवासौ बिल हक, हक की जब दावत दोगे तो बहुत सारी अज़ियतें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, परेशानियां आएंगी। सहाबाई कराम पर भी आया, वज़ुलज़िलू, कुरान कहता हिला दिए गए, हत्ता यक़ूलु रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नसरुल्लाह, यहां तक कि रसूल और ईमान वाले कहने लगे अल्लाह की मदद कब आएगी? अला इन्न नसरुल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। जब आप तौहीद की दावत लेकर उठोगे करनूल के अंदर, क्या सोचते हो फूल माला से वेलकम किया जाएगा? परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, अज़ियतें बर्दाश्त करना पड़ेगा, बुरा भला कहा जाएगा, ला मजहब बोला जाएगा, 24 नंबर बोला जाएगा, वहाबड़ा कहा जाएगा, तरह तरह के अलकाबात से आपको नवाजे जाएंगे। वतवासौ बिस्सब्र, सब्र का दामन नहीं छोड़ना है, अखलाक अपना आला रखना है, बेहतरीन अंदाज में दावत देते रहना है लोगों को। हमें बुरा कहे कहने दो, लेकिन हम उन्हें उनके सुख दुख में शामिल रहेंगे। भले सुख में मत शामिल होइए, दुख में खड़े होइए। यही इस्लाम की दावत है, यही तौहीद की दावत है। तो तामुरून बिल मारूफ दूसरी सिफ्त है कि मारूफ का काम करते रहना। तीसरी सिफ्त वयनहौना अनिल मुनकर, मुनकरात से रोकना। मुनकरात की बड़ी फहरिस्त उलमाए कराम ने अव्वल रखा शिर्क। आज धरती पे शिर्क हो रहा है। अल्लाह को तो मानते हैं, हाँ भाई मानते हैं, लेकिन चूंकि चुनांचा इफ एंड बट ऐसे तैसे खानदान लकड़दान चक्करदान ये जो बात करते हो ना, यही शैतान है। अल्लाह को मानते लेकिन कि चोचे शरीफ में भी हैं, अजमेर शरीफ में भी हैं, देवा में भी हैं, फलाने जगह पर भी हैं, ये भी हैं। जब तक इनका वसीला नहीं लगाएंगे नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुन सकता। अल्लाह अकबर। अब ये देखिए, 2 दूना 4 की तरह बात है, आपको समझ में आ रही है? जी, एकदम साफ सुथरी बात कर रहा हूं, अल्लाह के डर से ये बात कर रहा हूं। एक छोटा भाई समझिए, छोटा बेटा समझिए अपना, एक हमदर्द, एक दर्दमंदाना गुफ्तगू आपसे कर रहा हूं, एक दर्द लेकर आया हूं। क्या इस धरती पर धड़ल्ले से शिर्क की दावत हो रही है? कोई नक्शबंदी है कह रहे गौसे आजम जब तक ना चाहे किसी का बेड़ा पार नहीं हो सकता, वो धड़ल्ले से शिर्क फरोग कर रहा है। हम तौहीद की दावत लेके हिकमत 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 करके बुज़दिल बना दो, बुज़दिल होते चले जा रहे। वो धड़ल्ले से शिर्क कर रहा है। तौहीद की दावत हमारे पास, हम नहीं बोल पा रहे, खुल के नहीं बोल पा रहे। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के लिए देखो, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी नबी जनाब अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया रसूल आए,
سب کی ایک ہی دعوت ہے، یا قوم اعبدوا ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول معاذ بن جبل کو یمن کے طرف جب روانہ کیا تو پہلے کیا کہا؟ توحید کی دعوت دینا، توحید کے پہلے کچھ نہیں، نماز روزہ بعد میں، پہلے توحید کی دعوت دینا۔ کرنول کے واسیوں پہلے توحید کی دعوت دینا ہے، شرک سے روکنا ہے، اللہ کے ساتھ جو مردوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، الحمدللہ اہل الحدیث جماعت کبھی بھی کسی بزرگوں کی توہین نہیں کرتا، یہ جماعت ایسی کسی بزرگوں کی توہین نہیں کرتی، عزت احترام کرتے ہیں، مانتے ہیں، مانگتے ہیں صرف اللہ سے، یہی فرق ہے۔ مانتے ہیں بزرگوں کو، مانتے ہیں علماء کو، مانتے ہیں ائمہ اربعہ کو، لیکن مانگتے صرف اللہ سے ہے۔ یہی ہمارے اور آپ کے بیچ میں فرق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے شان میں گستاخی ہو رہی ہے، وسیلہ لگایا جا رہا ہے، وسیلہ کے ہم منکر نہیں ہے، جائز وسیلہ آپ لگا سکتے، اسماء الحسنہ کا وسیلہ لگائیے، جو بہترین بہترین نام ہے اللہ کے ان کا وسیلہ لگائیے، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگائیے، لیکن یہ وسیلہ کہ بزرگ سے جب تک وسیلہ نہیں لگائیں گے تب تک اللہ نہیں سنے گا۔ مثالیں بیان کرتے ہیں کہ ڈی ایم سے ملنے کے لیے چپراسی کی ضرورت پڑے گی، اللہ اکبر استغفر اللہ، اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا، ماں کے کوکھ میں 9 مہینہ رکھا، تمہارے نس کے ساتھ ماں کے نس کو جوڑ کر تمہیں غذا ماں کے پیٹ میں بھی دیتا رہا، دنیا میں آئے تو دنیا میں دودھ کی شکل میں غذا دیتا رہا، جیسے جیسے بڑے ہوئے روٹی گندم اور چاول وغیرہ اناج وغیرہ کی شکل میں تمہیں غذا دیتا رہا، جیسے جیسے بڑے ہوئے لگے دماغ لگانے کہ اللہ رب العالمین کے لیے مثالیں بیان کرتے ہو۔ اس لوجک کا بھی جواب سن لو، میں اکثر مقامات پہ جواب دیتا ہوں، اکثر جگہوں پر، کہ یہ جو تم مثالیں بیان کرتے ہو، ڈی ایم ڈسٹرکٹ منسٹر جو ہے، ضلع ادھیکاری جو ہے، وہ محتاج ہے اپنے پیون کا۔ جب تک یہ پیون اپنے ڈی ایم صاحب کو نہیں بتائے گا تب تک انہیں خبر نہیں ہوگی کون میرے چوکھٹ پہ میرے دروازے پر آیا ہے۔ مجھے بتایا جائے انصاف کے ساتھ، کیا میرا رب کریم بھی اتنا محتاج ہے؟ میرا رب بھی اتنا محتاج ہے؟ کون ہم سے مانگ رہا ہے جسے پتہ تک نہیں کب اٹھائے جائیں گے؟ اس سے ہم وسیلہ لگاتے ہیں اور مثالیں بیان کرتے ہیں، ان سے ذریعے سے اللہ تک بات پہنچے گی۔ اور لوگوں، ما قدر اللہ کا قدری، اللہ کی قدر ہم لوگوں نے نہیں سمجھا۔ میرا رب تو وہ ہے، کالی رات میں کالی پہاڑ پر کالی چیوٹی کی آواز سن کر رب اسے بھی رزق دیتا ہے، اسے بھی رزق دیتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی کہہ دیجئے جب میرا بندہ سوال کرتا ہے بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ اور لوگوں، اللہ کی دھرتی پر چلتے ہو، اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہو، اللہ کا دیا ہوا سانس لیتے ہو، اور اس سانس کی قیمت کووڈ کے اندر معلوم ہوا ہوگا، ایک ایک سلنڈر 20,000 دے رہے تھے، نہیں مل رہا تھا، اللہ فری آف کاسٹ سانس دے رہا ہے، اس سانس کی قیمت نہیں لے رہا ہے آپ سے، پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ یاد رکھو، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، جو اللہ کو تو مانتا ہے لیکن کہتا مشکل کشا یہ بھی ہے، دستگیر یہ بھی ہے، غوث اعظم یہ بھی ہے، گنج بخش یہ بھی ہے، بیٹا بیٹی دینے والے یہ بھی ہے، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، جو تعویذ پر بھروسہ رکھتا ہے، جو پوری زندگی یا علی مدد یا غوث مدد یہ جو ورد لگاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ سے تلاوت کر کے لوگوں کو بتا دیا، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار، کہ بے شک مشرک کے اوپر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اللہ جو گناہ چاہے معاف کر سکتا ہے، زمین سے لے کے آسمان تک گناہ لے کر آ جاؤ، وہ غفور الرحیم ہے، وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کی بخشش اللہ کے ہاں نہیں میرے بھائیوں، اور جو شرک کرتا رہا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں نکل گیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، لوگوں کو شرک سے بچاؤ، لوگوں کو روکو، انہیں بتاؤ یہ شرک کر رہے ہو، جو اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد یا غوث مدد کر رہے ہو،
मम्मा तो यदउ मिन दूनिल्लाहि निद्दन दखलन नार, जिस शख्स की मौत ऐसी हालत में हुई, या अली मदद या गौस मदद, उसी में मर गया, दखलन नार, और जहन्नम में दाखिल होगा। अपने ताया, फूफा, चाचा, चाची, दादा, अब्बा को अगर शिर्क की हालत में, बिदात की हालत में पा रहे हो, जवानों घरों के अंदर दावत दो, घरों के अंदर समझाओ, बताओ ऐ मेरे अब्बा बड़ी मोहब्बत है आपसे, अल्लाह के वास्ते शिर्क छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मोमिन के लिए जायज नहीं है किसी मुशरिक के लिए दुआ करे। अब्बा अगर आप इसी हालत में मर गए, हमें तो बड़ी मोहब्बत है, आपके लिए दुआ भी नहीं कर सकते, अब दुआ भी नहीं कर सकते, इसलिए अल्लाह के लिए शिर्क से बाज आ जाओ, आओ एक अल्लाह की तरफ आओ। मुनकरात में ये तीसरे नंबर पे है, जो लोगों को शिर्क से रोकते, मोमिन इसे कहा जाता है, मुनकरात से रोकते। मुनकरात में बहुत सारी बुराइयां हैं। आज देखिए दीन के जो टुकड़े हो रहे हैं, इन्हीं मुनकरात की वजह से हो रहे हैं। दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कोई इख्वानुल मुस्लिमीन बना लिया जमात, जो हसन अल बन्ना के नक्शे कदम पर चल रहा है, सैयद कुतुब के नक्शे कदम पर चल रहा है, मौदूदी के नक्शे कदम पर चल रहा है। अगर आप तारीख पढ़ो, मुझे किसी से बुग़्ज़ नहीं है, लेकिन अगर तौहीद पर खलल आई, तौहीद पर उंगली उठाई जाएगी, सहाबाए कराम के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त की जाएगी, रब्बे काबा की कसम, तुम हमारे बाप को गाली दो, बर्दाश्त करेंगे, माँ को गाली दो, बर्दाश्त करेंगे, बेटे को गाली दो, बर्दाश्त करेंगे, बीवी को गाली दो, बर्दाश्त करेंगे, खानदान को गाली दो, बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अबू बकर की शान में, उमर की शान में, अली के शान में, और उस्मान के शान में, खुलफाए राशिदीन के शान में, हमारी मां उम्महातुल मोमिनीन हजरत आयशा की शान में अगर गुस्ताखी करोगे, रब्बे काबा की कसम, चौखट पे भी रोकेंगे, चौराहे पे भी रोकेंगे, घर में घुस के रोकेंगे, जुबान पकड़ कर रोकेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते सहाबा की शान में गुस्ताखी। ये मोमिन की सिफ्त होती है। अल्लाह के वास्ते एक होना है तो इन सब मुनकरात को छोड़ना पड़ेगा। मोमिन की ये तीसरी सिफ्त है। चौथी सिफ्त, यकीमुन सलाह, मोमिन नमाज नहीं छोड़ता, मोमिन नमाज कभी नहीं छोड़ता। नमाज, सहाबाए कराम में नमाज छोड़ने का तसव्वुर ही नहीं था, आज हम धड़ल्ले से नमाज छोड़ रहे, आज हम कारोबार को अहमियत दे रहे हैं। इसी वजह से लोगों जिल्लत की मार पड़ रही है, हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं, हालात बस से बदतर होते जा रहे, हमारे करतूतों की वजह से। दूसरों पर उंगली उठाते हो, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफु अन कसीर, तुम्हारे ऊपर जो मुसीबतें आती हैं तुम्हारे अपने अमाल की वजह से आती है। हमारे अमाल अच्छे नहीं है, तासुब के शिकार हम हैं, घमंडी हम हो चुके हैं, चोरी हम करते हैं, झगड़ा हम करते हैं, सूद हम खाते हैं, सट्टेबाजी हम करते हैं, दिखावा हम करते हैं, रियाकारी हमारे अंदर है, तमाम जहान की बुराई हमारे अंदर, और हम कहते हैं अल्लाह हमारे लोग के ऊपर जिल्लत मुसल्लत कर दिया। क्यों ना करे, अमाल हमारे अच्छे नहीं है। जी जनाब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा, इसीलिए हम नमाज से ज्यादा तिजारत को अहमियत दे रहे। अल्लाह के रसूल की प्यारी हदीस है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, अभी थोड़ी बात बाकी है। इदा तबायातुम बिलईना, कि ऐ मुसलमानों जब तुम कारोबार में चोरी करने लगोगे, करनूल के वासियों जरा गौर से सुनो, जब तुम कारोबार में चोरी करने लगोगे, वरदीतुम बिज़्ज़रा, और खेती बाड़ी तिजारत तुम्हें पसंद आने लगेगी, सल्लल्लाहु अलैकुम दुल्ला, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस वक्त तुम्हारे ऊपर जिल्लत मुसल्लत कर देगा, ला यंज़िउहु, और उस वक्त तक जिल्लत नहीं हटाएगा, हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, यहां तक कि तुम अपने दीन की तरफ ना आ जाओ। आज हम नमाज से दूर है, कारोबार में इतना मस्त है, मुअद्दिन कहता है हय्या अला सलाह, एक कस्टमर निपटा ले, दो निपटा ले, चार निपटा ले, नमाज निपट गई। अब आ रहे हैं जनाब कारोबार से मोहब्बत, कारोबार में चोरी झूठ सब हम कर रहे हैं, तो अल्लाह जिल्लत मुसल्लत कर दिया। वजह दीन से दूरी, वजह किताब और सुन्नत से दूरी। मैंने कल पूछा था कितने घरों में कुरान है, सब ने उठाया हमारे घरों में है, लेकिन जब हमने पूछा ओ उम्मते मोहम्मदिया मुझे बताओ जरा कितने घरों के अंदर नबी के चाहने वालों, नबी की बात कितने घरों के अंदर है, किसी का हाथ नहीं उठा, इल्ला माशा दो चार के, बस
अफसोस की बात है, यही वजह है कोई भी आता कोई जमात की दावत देता हम गुमराह हो जाते हैं। जरूरत इस बात की है जहां पे तुम एप्पल के 2 फोन रखो, एक रखो, 2 एसी है तो 1 एसी रखो, डल्लफ लग्जरी लाइफ है थोड़ा कम करो, लेकिन हदीस अपने घरों के अंदर लाओ। और बुजुर्गों, अपनी औलादों को वसीयत करके जाओ, तौहीद का, शिर्क से रोकने का मनहजे सलफ की वसीयत करके जाओ। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे अंदर घरों में किताब सुन्नत का बोलबाला होगा। नमाज तभी हमारे बच्चे पढ़ेंगे। बहुत सारी फजीलत सुने होंगे, एक फार्मूला दे रहा हूं कि जो नौजवान नमाज नहीं पढ़ता, आपकी नजर में अगर आपको मालूम हो जाए और आपकी बेटी जो है परहेजगार है, नमाजी है, मेरी मां और बहनें नमाजी है, तो याद रखो औलाद वालों, अपनी बेटी को बिन बया घर में रख के बूढ़ा कर दो, लेकिन किसी बेनमाजी मुशरिक से निकाह नहीं करना, नहीं करना बेनमाजी मुशरिक से। बेनमाजी भी मुशरिक होता है। नमाज कायम करो, ला तकून मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से मत हो जाओ। मुशरिकों को अपनी बेटी को मत दो। बताओ मुझे कोई शर्मा वर्मा से कोई अपनी बेटी का शादी करा दे? नहीं, क्यों? उनका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है, कैसे करा दे? कैसे करा? तो आप कैसे मुशरिक बेनमाजी के साथ निकाह करा देते हो? तो मोमिन इसे कहा जाता, नमाज नहीं छोड़ता है। और सरसरी चल रहा, वक्त खत्म हो गया है, ये 2-3 बातें रह गई। वही उतून ज़का, मोमिन इसे कहा जाता अल्लाह के राह में माल खर्च करता है, बगैर हिचकिचाए, दिलदार होता है मोमिन। उस्मान को उस्मान गनी ऐसे नहीं कहते, बड़े दिलदार थे, कुआं खरीद कर वक्फ कर दिया मुसलमानों के लिए, ऐसे ही नहीं कहते। आज हमें भी वैसा ही होना होगा। अल्लाह को राजी करना है तो मालदारों, अल्लाह के राह में माल खर्च करके अल्लाह को राजी कर लो। एक दौर ऐसा आएगा, माल लेकर गली गली ढूंढोगे, लेने वाले कौन है? कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। अल्लाह को राजी कर लो, और अगर माल जमा करोगे और नहीं खर्च करोगे तो सजा है, यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतकुवा बिहा जिबाहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनीज़ून मा तकनीज़ून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, जो लोग माल जमा करते हैं और उसे खर्च नहीं करते, अल्लाह उसको तपाएगा जहन्नम के आग में, पेशानी पे दागेगा, पुश्त पे दागेगा, पीठ पर। क्यों दागेगा? और भी जगह दाग सकता था, सिर्फ पेशानी पर, सिर्फ पीठ पर, सिर्फ पुश्त पे क्यों दागेगा? इसलिए साइल हाजी साहब, सेठ साहब के पास आया सवाल करने। सेठ साहब उसकी पेशानी, यानी कि उसके देख के अपने पेशानी घुमा लिया, बेचारा पेट का सवाल था, फिर गया पीठ दिखा दिया, पेट का सवाल था, फिर गया पुश्त दिखा दिया। अल्लाह कहेगा इसके माल से इसके पेशानी को, इसके पीठ को, इसके पुश्त को दागो। ये इसकी तफसीर है। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के राह में माल खर्च करके मोमिन बन जाओ। वयुकीमूनस्सलाह वयुतूनज़्ज़का वयुतीऊनल्लाह व रसूलहू। मोमिन की जो एक सिफ्त है, यह आखिरी सिफ्त है, क्या है? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत फरमाबरदारी करता है। अल्लाह और उसके रसूल इताअत फरमाबरदारी। हदीस बयान करके बात को खत्म करते। अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा इस्तवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल जुमअह क़ाल इजलिसू फसमिअ ज़ालिका बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फजलस अला बाबिल मस्जिद फअराहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल तआला अब्दुल्लाह बिन मसऊद। रवाहु अबू दाऊद, अबू दाऊद की हदीस है, जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस है। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल जुमा के दिन खुतबा दे रहे थे। खुतबा के दौरान किसी से कहा इजलिसू, सिट डाउन। ओ करनूल के वासियों, इस हदीस पर अमल कर लो, इंशाअल्लाह इत्तेहाद पैदा हो जाएगा। इस हदीस पर अमल कर लो। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह के बाहर मस्जिद में बोर्ड नहीं लगाना पड़ेगा कि यहां से फला फला है। जी, ये नहीं लगाना पड़ेगा जिस दिन हम अमल कर लेंगे। साहबे रसूल कहते हैं, जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे थे, खुतबा के दौरान किसी से कहा इजलिसू, बैठ जाओ। अल्लाह अकबर, जरा गौर से सुनो, करनूल के वास्ते थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं, गौर से सुनो। अल्लाह के रसूल ने किसी और से कहा कि बैठ जाओ। अब्दुल्लाह बिन मसूद मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे, एक पैर, ये गेट है, एक पैर अंदर है और एक पैर बाहर है। कानों में सदा आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बैठ जाओ, जबकि नाम नहीं लिया कि अब्दुल्ला आप बैठ जाइए, बल्कि किसी और से कहा। अब्दुल्ला के कान में सदा आई, नबी ने कहा बैठ जाओ। फसमिअ ज़ालिका बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फजलस अला बाबिल मस्जिद, वहीं दरवाजे पे बैठ गए। कहा? मस्जिद के दरवाजे पे। फअराहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल तआला अब्दुल्लाह बिन मसऊद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो बोला अब्दुल्ला आप अंदर आ जाइए। अल्लाहु अकबर। इस हदीस से 2 नुक्ता मिलता है। एक, ये खतीब जो है आपसे अगर कुछ सवाल करे, आप खतीब को जवाब दे सकते, आपस में बात नहीं करते, अगर करेंगे तो जुमा खराब होगा। दूसरा नुक्ता यह मिला, इताअत अगर करनी है तो साहबे रसूल अब्दुल्लाह बिन मसऊद से सीखो कि जो पैर जहां था उसको उठाकर अंदर रखना गुस्ताखे रसूल समझा कि नबी की शान में गुस्ताखी ना हो जाए।
آج ہم اور آپ کیا کرتے جی؟ ہم نے قرآن رکھا آپ کے سامنے, حدیث رکھا, بات تو صحیح ہے لیکن چونکہ کنتو پرنتو اف اینڈ بٹ کہہ کے ستیہ ناش کر دیتے. بات تو صحیح ہے, خاندان سے تو ایسا چلا آ رہا ہے, باپ دادا سے تو ایسا کرتے آ رہے, امام صاحب نے تو ایسا کہا, خلاص فلا وربک لا یؤمنون, مومن نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا قرآن میں, تیرے رب کی قسم مومن نہیں ہو سکتا. حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وسلموا تسلیما. جب تک آپ کو جسٹس نہ مان لے, آپ کے اختلافی مسائل اگر لے آئے, آپ کو لے کر آنا پڑے گا. فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. جب بھی کوئی مسئلہ اختلافی ہو جائے, اللہ رسول کی طرف لے جانا, اماموں کی طرف نہیں, بزرگوں کی طرف نہیں, خاندان کی طرف نہیں, اللہ اور اس کے رسول, اور رسول کو جج ماننا پڑے گا. اور جج ماننا تو دور کی بات, جج کا فیصلہ صادر ہو جائے بغیر چو چرا اف اینڈ بٹ, یہ کہنا کہ خاندان سے, امام صاحب سے اگر یہ بات بھی کہتے تو مومن, بولو بھائی, نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے مومن. مومن ہونا ہوگا تو شرط ہے سمعنا, سننا, وہ اطعنا, اطاعت فرما برداری کرنا. یہودی کیا کرتے, سمعنا وہ عصینا, منہ موڑ لیتے. ہمیں ویسا نہیں ہونا ہے کہ مسجد کے باہر جھاڑ جھوڑ کے ادھر سے ادھر ہی نکال دو خلاص نہ. مومن اسے کہا جاتا ہے. یہ بات سمجھ میں, آیت کریمہ یہاں سے اینڈ ہوتی ہے, اولئک سیرحمہم اللہ, اللہ ان پر رحم فرمائے گا. کتنی کیٹیگری ہوگی مومنوں کی؟ نمبر 1, آپس میں بھائی چارہ. بھائی چارہ تبھی ہوگا جب توحید ہوگی, یامرون بالمعروف, یہ دوسری صفت ہے. تیسری صفت یہ بدعات, خرافات, شرک سے باز آنا ہوگا, منکرات سے باز آنا ہوگا, اپنی بہن بیٹیوں کو پردہ کرانا ہوگا. اور جو خواتین شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے, اپنے شوہروں کی عزت اور احترام کرنا ہوگا. بہت سارے خواتین ایسی ہیں جو اپنے شوہروں کو اذیتیں دیتی ہے, پریشان کرتی ہے, ان کا مال چراتی ہیں, جبکہ مال ان کو کھانے کا مل جاتا ہے اچھے سے, لیکن پھر بھی چراتی. یاد رکھو, اگر تم دنیا میں انہیں ستاؤ گی تو جنت کے حوریں کہیں گی کہ مت ستا, یہ تو تیرے پاس کچھ دن کے لیے ہے, کچھ دن کے لیے ہے. تو یہ سب منکرات میں شامل ہے, اس لیے ان سب سے باز آنا ہوگا. جہیز کا لین دین بند ہونا ہوگا, رسم رواج بند ہونا ہوگا. یہ تیسری صفت ہے. چوتھی صفت یہ ہے نماز قائم کرنا ہوگا. کاروبار سے اتنا ہی فائدہ اٹھانا جتنا دنیا میں رہ سکے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر, یہ دنیا قید خانہ ہے مومنوں کے لیے, جنت ہے کافروں کے لیے. ہم مومن ہیں, اتنا ہی فائدہ اٹھائے جتنے میں کام چل جائے. نماز نہیں چھوڑنا ہوگا, اور اللہ کے راہ میں خرچ کر کے اللہ کو راضی کرنا ہوگا. اور آخری اور اہم بات کہ جب بھی بات اللہ اور رسول کی آ جائے, نہ باپ دادا کی بات چلے گی, نہ امام کی چلے گی. چلے گی تو کس کی چلے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. تب اللہ کہتا اولئک سیرحمہم اللہ, اللہ ان پر رحم فرمائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے, یا رب کریم جو کچھ بھی ہم نے کہا ہے اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور آپ سبھی کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم ہمیں جو بیمار ہیں, چاہے بچوں میں, چاہے بزرگوں میں, چاہے بڑوں میں, چاہے ماؤں میں, اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ سے نواز دے. اللہ ہمارے اس جماعت و جمعیت پر رحمت کا نزول فرما. اللہ ہمارے اندر اتحاد پیدا کر دے. اللہ ہم سب کو توحید والا بنا دے. اللہ ہم شرک سے کمپرومائز نہ کرے, ایسا ہمیں دل دے دے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو اندر وہ جذبہ پیدا کر دے جو 313 کے اندر تھا, ہزاروں کو ہلا کر رکھے تھے. اللہ وہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا کر دے. اللہ جو ہمارے میں انتشار پھیلا رہے ہیں, تعصب حسد کا شکار ہو رہے, اللہ انہیں ہدایت دے دے. اللہ ہمارے رشتہ دار جو شرک بدعات پر ہے, اللہ انہیں ہدایت دے دے. اللہ ہم سب یہاں گنہگار ہیں رب کریم, اوپر سے لے کے پاؤں تلک گناہ میں مبتلا ہے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اللہ دجال کے فتنے سے بچا لے. اللہ شیطان کے وسوسے سے بچا لے. اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے. اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے. اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے. اللہ جنت میں جنت الفردوس عطا فرما. اللہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں تیرے بارگاہ میں چولی پھیلائے, تو ڈائریکٹ سنتا ہے. اللہ ہم وتھ فیملی مال و عیال جنت میں جگہ دے دے. اللہ جنت الفردوس عطا فرما. اللہ ہمارے ملک ہندوستان
ایمان جو ہمارے لیے عزیز ہے، اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و امان کا گہوارہ بنا دے، امن و امان پیدا فرما دے۔ اللہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، غزہ میں، فلسطین میں، کہیں پر بھی، اللہ ان مسلمانوں پر رحم فرما، ان بچوں پر رحم فرما، ان ماؤں پر رحم فرما۔ اللہ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لے۔